Hello, good morning, students. I am your SS teacher, and today we are going to start Chapter 10 18th Century Political Formations of Class 7 of SS subject. So, in this chapter, we will discuss about the crisis of Mughal Empire and rise of British, and how British grabbed major territories of India. And we will also read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century. इस चैप्टर में हम 18th सेंचुरी के जो शुरुआत का टाइम है उसमें हम देखेंगे कि कैसे नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ और कैसे मुगल एम्पायर का क्राइसिस हुआ. एंड look here, if you look at maps 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. Notice how the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of the independent kingdoms. By 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. What these maps tell us is that political conditions in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. 18th century में कैसे political conditions change हुई and how British conquered and ruled most of the part of eastern India. अब इन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस की शुरुआत कब हुई? जब औरंगजेब की डेथ हुई और जो पानीपत की लड़ाई हुई उस बीच के टाइम की हम इस चैप्टर में बात करेंगे. यू कैन ऑब्जर्व दिस मैप ऑल्सो. दिस इज द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1700. You can see the emergence of some independent groups like Sikhs, Jats, Marathas in Pune and हैदराबाद. अब जैसे ही नए ग्रुप्स जो बने उनका जैसे ही एमर्जेंस हुआ उसी के साथ जो मुगल एम्पायर्स थे उसका इन्फ्लुएंस और प्रभाव और पावर कम होता गया. नाउ इन दिस मैप यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स were grabbed by the British and they started rule over these areas. You can also see the highlighted part. It is territory under British control during mid 18th century. In this chapter we will read about the emergence of new political groups. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये चैप्टर में जो नए political groups बने उसके बारे में हम देखेंगे. And in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when औरंगजेब died, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और till the third battle of पानीपत in 1761, पानीपत का जो थर्ड वॉर हुआ, थर्ड युद्ध हुआ, उस बीच का जो टाइम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो ग्रुप बने उसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ सी द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स. अब लेटर मुगल्स मतलब औरंगजेब के बाद कुछ जो मुगल्स आए जिन्होंने रूल किया वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने इन्फ्लुएंस उनका नहीं था, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर का क्राइसिस कैसे हुआ. It became increasingly difficult for the later Mughal emperor to keep a check on their powerful mansabdars. Nobles appointed as governors, subedars often controlled the office of revenue and military administration, diwani and फौजदारी as well. अब जो लेटर मुग़ल एम्पेरर्स थे उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई कि उनके जो पावरफुल मनसबदार थे या तो उन्होंने जो नॉबल्स अपॉइंटेड किए थे जिसको सूबेदार कहा जाता था कि जो रेवेन्यू ऑफिसेस संभालते थे, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो गई कि उनका जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी जो दीवानी और फौजदारी सत्ता थी वो संभालने के लिए वो कैपेबल नहीं थे. So in chapter 4 you saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of 17th century. आगे के चैप्टर में हमने देखा कि कैसे ही मुग़ल एम्पायर का
बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा था और उन्होंने एक सक्सेस की एक टॉप पे वो पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद उनको कुछ क्राइसिस भी फेस करने पड़े ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। दिस वर कोस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। एम्पियर औरंगजेब had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan। अब औरंगजेब ने डेक्कन में जो वॉर जो बैटल लड़े उसकी वजह से मिलिट्री सोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते गए या तो फिर नष्ट हो गए। अंडर हीज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इम्पेरियल एडमिनिस्ट्रेशंस ब्रोक डाउन, और उसके जो फॉलोअर्स थे सक्सेसर्स उनके साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा टूट गया। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पायर टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स, और उसकी वजह से जो लेटर मुगल्स थे उनके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रख सकें। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स सूबेदार्स ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि इसके लिए जो नोबल्स अपॉइंट किए जाते थे सूबेदार्स के जो रेवेन्यू ऑफिसेज का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता था। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पीरियोडिक रेमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइंड, और इसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स मिल गई जो मुगल एम्पायर के रीजन थे उसके ऊपर। एंड एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, अब जो सूबेदार थे उन्होंने कुछ प्रोविंसेस पे अपना जो रूल था वो ज़्यादा ही पावरफुल किया, उसकी वजह से जो रेवेन्यू कैपिटल तक पहुंचता था वो डिक्लाइन हो गया, कम होता गया। नाउ peasant and zamindari rebellions in many parts of northern and western India added to these problems। अब नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो पीजेंट्स और ज़मींदारी लोगों ने सामने रिबेल किए उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। दिस रिवॉल्ट्स वर समटाइम्स कोज्ड बाय द प्रेशर्स ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। कभी कभी ये जो रिबेल्स होते थे उनका जो कारण था, रीज़न था रिवॉल्ट होने की, जो रीज़न की वजह थी वो थे टैक्स बढ़ने की वजह से। जैसे जैसे टैक्स बढ़ते गए इन लोगों ने सामने रिबेल करना शुरू कर दिया। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट्स बाय पावरफुल चिफ्टेन्स टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशंस, और कभी कभी पावरफुल चिफ्टेन्स के द्वारा उनकी पोजीशन फिक्स करने के लिए या तो उनकी पोजीशन बढ़ाने के लिए जो अटेम्प्ट्स किए वो भी रीज़न हुआ करता था। एंड मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल, और उसके अलावा भी जो मुगल अथॉरिटी थी वो पास्ट में भी ऐसे ग्रुप्स की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी या तो उनको चैलेंज किया गया था। द मुगल एम्पायर्स आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल चिफ्टेन्स एंड अदर ग्रुप्स। और जैसे जैसे जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर थी वो दूसरे सूबेदार या दूसरे गवर्नर के हाथ में आ रही थी, और इसकी वजह से जो चेंजेस आए उनको जो औरंगजेब के सक्सेसर थे वो नहीं रोक पाए। नाउ इन द मिस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761. अब इन सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बीच में ईरान के रूलर नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया और पूरी दिल्ली को लूट लिया। इन 1739 उसने सारी जो धन दौलत थी, सारी वेल्थ थी वो साथ में ले गया, और उसके बाद दिल्ली पे जो आक्रमण हुए, उत्तर भारत पे जो आक्रमण हुए वो अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किए गए, कि जिसने 5 बार उत्तर भारत पे आक्रमण किया बिटवीन 1748 एंड 1761। नाउ ऑलरेडी अंडर सेवर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, आसपास की बहुत
जगहों से प्रेशर होने के बाद भी द एम्पायर वॉज फर्दर वीकन्ड बाय कंपटीशन अमंग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स। इसके अलावा भी एम्पायर किस तरह से वीक हुआ कि उनके आसपास के जो नोबल्स थे या नोबल्स के कुछ ग्रुप्स थे उनके बीच में जो कंपटीशन थी, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स और फ्रैक्शंस। उनको 2 ग्रुप में 2 समूहों में डिवाइड किया गया था, द ईरानीज एंड तुरानीज, नोबल्स ऑफ तुर्किश डिसेंट। जो तुर्क के नोबल्स थे जिसको हम बोल सकते हैं ईरानीज और तुरानीज, ये 2 हिस्से थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन और द अदर ऑफ दिस 2 पावरफुल ग्रुप्स। बहुत लंबे समय तक जो लेटर मुगल्स थे वो या तो इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप के हाथ की कठपुतलियां बन के रह गए थे। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन 2 मुगल एम्पेरर्स फारुखसियार 1713 and 1719 and Alamgir II 1754 and 1759 were assassinated। सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन तब हुआ जब इन दोनों मुगल एम्पेरर फारुखसियार और आलमगीर सेकेंड उन लोगों की मृत्यु हो गई। एंड 2 अदर्स अहमद शाह एंड शाह आलम II वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स। और दूसरे मुगल एम्पेरर अहमद शाह और शाह आलम को उनके नोबल के द्वारा अंधा कर दिया गया। एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का उदय। विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पेरर, द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स एंड द ग्रेट जमींदार्स कॉन्सोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे ही मुगल के अंदर क्राइसिस शुरू हो गई या तो फिर उसका पतन शुरू हो गया, उसके साथ साथ में कुछ नए पॉलिटिकल ग्रुप्स बने अलग अलग पार्ट्स में। Through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent regional states। 18th century के अंदर जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे टुकड़ों में बट गया। और broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into 3 overlapping groups। और जैसे ये टुकड़ों में बटने लगा उसके अलग अलग 3 ग्रुप हुए। फर्स्ट, states that were old Mughal provinces like अवध। ऐसे राज्य या ऐसे states के जो पुराने मुगल प्रोविंसेस हुआ करते थे लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, के जो एकदम अलग से पावरफुल और इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक दैट फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्पायर। और इन स्टेट्स के जो रूलर थे उन्होंने मुगल एम्पायर के साथ में अपनी जो संबंध थे वो नहीं तोड़े। सेकेंड, स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर। कुछ ऐसे स्टेट्स के जो मुगल के साथ में अलग से वतन जागीर के रूप में इंडिपेंडेंट थे। दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटीज, और इसमें कुछ राजपूत शासक भी हुआ करते थे या राजपूत ग्रुप्स भी हुआ करते थे। थर्ड, द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख्स एंड अदर लाइक द जाट्स। जो लास्ट ग्रुप था थर्ड पॉलिटिकल ग्रुप के, इनके अंदर जो जिसके ऊपर मराठा, सिख्स या दूसरे जाट्स उनका कंट्रोल हुआ करता था। दीज वर ऑफ डिफरिंग साइज एंड हैड सीज्ड देयर इंडिपेंडेंस। ये अलग अलग कद या अलग अलग साइज में हुआ करते थे कि जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता मुगल से छीन कर ली थी। इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद इनको अपनी इंडिपेंडेंस या अपनी स्वतंत्रता मिली थी। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, पुराने मुगल प्रांत। नाउ अमॉन्ग्स द स्टेट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी, जो पुराने मुगल प्रांत हुआ करते थे उनके उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ। उनमें से 3 स्टैंड आउट वेरी प्रोमिनेंटली, के जिनमें से जो 3 स्टेट्स थे वो सबसे ज़्यादा फेमस है। दीज वर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, जो कि अवध, बंगाल और हैदराबाद थे। ऑल 3 स्टेट्स वर फाउंडेड बाय मेंबर्स ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी हु हैड बीन गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस। अब इन तीनों राज्यों की जिन्होंने स्थापना की थी कि वो बड़े बड़े प्रोविंसेस के गवर्नर्स हुआ करते थे, वो थे सादत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल एंड आसफ जहां हैदराबाद। All 3 had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of the emperors। अब ये जो तीनों थे उनको मुगल दरबार के अंदर बहुत ही हाई पोजीशन मिली हुई थी और इनके ऊपर उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट, विश्वास था। Both आसफ जहां एंड मुर्शीद कुली खान had a Jat rank of 7,000 each। अब जो आसफ जहां और मुर्शीद कुली खान दोनों थे उनको जो जाट रैंक था वो दोनों को 7-7 हज़ार का रैंक मिला हुआ था। वाइल सादत खान जाट वॉज 6,000, जो सादत खान थे उनकी जाट रैंक थी 6,000 दर्जा मिला था हुआ था उनको इस तरह का
जिसमें से आसिफ जहाँ और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान जो थे उनकी जात का दर्जा 6,000 यानी कि 6,000 था। अब आगे जो हैदराबाद, अवध और बंगाल जो प्रोविंसेस थे उनके ऊपर जो सूबेदारों ने किस तरह से रूल किया, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन रीड एंड रिवाइज द चैप्टर।